Good afternoon and welcome everyone to this class on Current Affairs Roundup 365. So guys, today's topic of our class is going to be Electoral Reforms Model Code of Conduct. As we have been discussing through DNA and current affairs, this topic of electoral reforms, if we have a look at electoral reforms 360 degree, electoral reforms में अगर हम 360 degree analysis को देखें तो क्या क्या contours आप recollect कर सकते हो, right? So we'll be following the topic based approach as you all know. Just allow me 1 minute to open the tab of your course. PPT has already been shared with you. Some of you have not been added to the Telegram channel. You will soon be added. Just 1 minute. So 3-4 चीजें इसमें आ जाती हैं. 3 to 4 things. Criminalization of politics. Association of Democratic Reforms keeps on talking about it. Regulation of political parties. Regulation is necessary for this thing. So one thing feeds into another. This is a logical correlation, right? In everything, every topic, if we follow the topic based approach. Questions पूछे जा सकते हैं कि in the last 3 Lok Sabhas, criminalization of politics is increasing. We have been talking about it, right, in the past also. So powers of Election Commission of India therefore need to be relooked at. Representation of People's Act is a major source of power of Election Commission of India. Then Article 324 basic part static portion में ये आ जाएगा. Then when the power of the Election Commission of India would be increased, in today's class we would see how Election Commission of India would then be able to properly regulate political parties and will ensure the strengthening of model code of conduct. Model code of conduct तभी strong होगा, तभी strengthen हो पाएगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रांग होगा, राइट? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे स्ट्रांग होगा? जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस एक्ट में अमेंडमेंट्स लेके आओगे, संशोधन लेके आओगे. Until and unless you bring about the amendment, this will cause a problem, right? So this is their funding of political parties. This is another major reason. This thing is not feeding into it. These two things are feeding into one another. Funding and criminalization. Monetization, as I use the word in the DNA and for this particular phenomena, monetization of elections as well as the funding of political, the criminalization of politics. Monetization and criminalization. We have seen in our sessions and all कि second ARC, second Administrative Reforms Commission ने इसके बारे में बात करी है. When we follow the topics based approach, many people are not able to just, are you guys able to chat? Just 1 minute. There are some messages. I'm not able to see your messages. Yes, disabled chat box is what is written here. Just allow me 1 minute. Just 1 minute, guys. You'll soon be able to chat and ये प्रणव को बोलो नवनीत को कॉल करेगा. चैट डिसेबल्ड लिखा हुआ आ रहा है उसमें, जल्दी करवाता हूँ. Yes, there is this problem. Please be patient. We will be rectifying this problem. This problem is from the video player Vimeo. We'll be looking into it. तो ये है electoral reforms का gamut. अगर किसी के मन में कोई और point आता है, for the time being you can use the Telegram channel as well. And some of you have still not been added because I had posted a message कि जो लोग रेगुलर नहीं है कोर्स से तो वो थोड़ा रेगुलर हो जाएं. उसके बाद कुछ लोग अब निकल के आ रहे हैं कि हम लोग टेलीग्राम में एडेड नहीं है. There were so many messages on my personal telegram. तो प्लीज कॉन्टैक्ट वाया व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8829323364. 8829323364 is the number you need to contact on. They will quickly add you to the Telegram channel for the time being. We can use the Telegram channel for chatting purpose, for commenting purpose. So, Election Commission of India is a constitutional body. We all know that
responsible for administering elections according to model code of conduct, right? Please don't share these photographs and all. We know that this problem is there, right? Okay, just be patient, guys. Please be patient. Now, so Election Commission of India is a constitutional body responsible for administering elections in India according to rules and regulations mentioned in the Constitution of India. There is no dedicated law for Election Commission of India. We all know this. By now we all know this. It was established on January 25, 1950. 25 जनवरी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया वैसे ही दिस बॉडी ऑल्सो केम इनटू फोर्स. फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया हैपेंड इन 1952. वो सब चीजों की जरूरत नहीं है. इट्स एग्जिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंस आर नेसेसिटेटेड बाय हिस्ट्री व्हिच हैज शोन दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर नॉट फ्री फ्रॉम साबोटाज. तो एक पहले होता था कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, खुलेआम क्राइम होता था. अब चीजें चेंज होती हुई आ रही है ना. अब नए तरह के चैलेंजेस हैं. यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज मेक द क्रिमिनल कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. तो ये सारी चीजें हो रही हैं अब. However, in April 2019, in a letter to President of India, a group of retired bureaucrats. 2019 में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Before general election of Lok Sabha. General election of Lok Sabha is a major event. Democracy में फेस्टिवल माना जाता है इलेक्शंस को. तो April 2019 में a group of retired bureaucrats in the context of the partition outlook of certain election commissioners. ठीक है. in the context of recent incidents expressed concerns over EC's weak need approach. यानी कि EC के घुटने जो है कमजोर पड़ रहे हैं and the institution suffering from a crisis of credibility. तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का ये जो ग्रुप है, TSR सुब्रमण्यम जैसे लोग इसमें थे जो कि रिटायर्ड ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, वो सबका ग्रुप है. तो उन्होंने प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा कि since president appoints the election commission in India on the basis of aid and advice of प्राइम मिनिस्टर एंड द एम्पावर्ड कमेटी, तो प्रेसिडेंट वाज द राइट फोरम. तो उन्होंने लिखा कि ये सारी चीजें चल रही हैं. इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जो उस टाइम के इलेक्शन कमिश्नर थे, रिसेंटली डिसेंटेड with the opinion of his colleagues in the election commission in 5 different matters pertaining to alleged violation of model code of conduct. अशोक लवासा ने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें दबा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ दोनों, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज अ 3 member बॉडी. तो अगर एक इलेक्शन कमिश्नर इस तरफ हो जाता है, सीईसी के साथ मिल जाता है, क्योंकि ये वो वाला इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसको प्रमोशन होने वाला है सीईसी के लेवल पे. ठीक है, जिसका प्रमोशन होने वाला है. सीनियरिटी प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी, बट it might not be followed by the government of the day. Government of the day can appoint somebody else as CEC because it is just a convention. It is just a convention that when the CEC retires after attaining the age of 65 years, then the president or the convention says that the incumbent officer will become the CEC. But अगर CEC को रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसीलिए ये वाला CEC जो है सेंट्रल इलेक्शन ये वाला जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो चापलूस बन जाता है. He becomes a bootlicker of the government. This has been seen in some cases like कांग्रेस के टाइम पे बी नवीन चावला was the bootlicker of कांग्रेस. ठीक है, और भी काफी रीजंस थे. आईएएस ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, तो सरकार उनको अपने कंट्रोल में किसी ना किसी तरह कर ही लेती है. 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होने की वजह से, क्योंकि ये नंबर कम है. अब अगर आप देखोगे यूपीएससी में दिस नंबर इज 10. सिंस दिस नंबर इज 10 फॉर यूपीएससी, दिस हेल्प्स द कॉज. दिस हेल्प्स द कॉज एज यूपीएससी यू कैन नॉट को-ऑप्ट. प्लीज राइट डाउन दिस टर्म, को-ऑप्टेशन. को-ऑप्ट मतलब एक को अपनी तरफ कर लेना. जो अनकन्वेंशनल मेंबर होता है, जो आपको थोड़ा सा अनसुटेबल है सरकार के लिए, सरकार का कहना नहीं मान रहा, तो सरकार उसे अपनी तरफ कर लेती है समहाउ. ठीक है, को-ऑप्ट कर लिया कि कोई प्लम पोस्टिंग का लालच दे दिया, कुछ इस तरह से. राइट, सो दिस इज देयर. नाउ आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
vests the superintendent's direction and control of elections in the commission. So problem lies in article 324. Article 324 in very very general words gives this power to election commission. Superintendent's direction and control of elections in an election commission consists of the chief election commissioner and such number of other election commissioners. Please write down the term for this fact for prelims, that Constitution of India only talks about CEC and such other number. Such other number. अब ये such other number कितना होगा? That is left to the president, not to the parliament. My dear students, be attentive. President will decide whether to increase the number or not. This is what had happened in 1989 when T.N. Session was the election commissioner. Right? Chief election commissioner. So soon after coming to power, National Front government rescinded the presidential notification through which ECI was made a multi-member body. Okay, so National Front government ने ये किया. Thus for the next 2 years ECI continued to function as a single member body. तो Supreme Court ने, please note down this case for your mains examination, SS Dhanoa versus Union of India, observed that more heads were needed, more heads were better than one in a body. So today is a culture of institutionalization of power. Individualization of power is what we see in CAG. CAG ने जो आरोप लगाए, जो भी एलिगेशंस थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सही थे या गलत थे, हम उस पे नहीं जा रहे. हम ये बात कर रहे हैं कि CAG एलिगेशंस का पात्र क्यों बना. Why was CAG made the victim of allegations? Because it is a single person body. Wherever there is a single person body, there is both. Number one, the scope of allegations, scope of misuse of power. अगर मैं बीजेपी से बिलोंगिंगनेस रखता हूं या मुझे कल को पार्टी की टिकट चाहिए बीजेपी की, तो मैं बीजेपी की साइड कुछ ऐसा करूंगा कि कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के अराउंड मैंने कुछ ऐसी रेवलेशंस कर दी जिससे कांग्रेस पार्टी को करप्ट पार्टी माना जाएगा. अगर मैं कांग्रेस की तरफ ताल्लुकात रखता हूं तो मैं बीजेपी के बारे में ऐसा करूंगा. लेकिन अगर मेरे साथ 5 और मेंबर्स हैं, आई एम अ पार्ट ऑफ अ मल्टी मेंबर बॉडी, अगर मेरे साथ 10 और मेंबर हैं जैसे यूपीएससी है, तो ये करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, इसीलिए मल्टी मेंबर बॉडीज लीड टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर, leads to institutionalization of power. Those who are still not able to access the chat, please refresh at your end and you'd soon be able to see. अगर फिर भी नहीं होता तो please try logging out and then logging in and clear the cache of your system. जो कैच है सिस्टम में, कैश है या कैश है जो भी है, ठीक है, या कैची है जो भी है, उसको डिलीट कर लेना. CACHE, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिलीट कर लो, क्लियर कर लो, एंड यू वुड बी एबल टू. कुकीज एंड ऑल ये सब थोड़ा देख लेना. सुप्रीम कोर्ट ने SS धनोआ में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी प्रॉपर इफ इट इज मेड इनटू अ मल्टी मेंबर बॉडी. ठीक है, तो यही अप्रोच जो है आप देखोगे कि इसके अलावा कोई और चीज कोई ऐड करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो बताओ मेरे को. वी वुड थिंक कि कहां ऐड हो सकता है. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अब इसमें छोटे छोटे से फंक्शंस हैं. क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ड्यूरिंग द नॉन इलेक्शन टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट देयर. अब कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जैसे कि BMW के पुतले, कार के पुतले नहीं, बहन मायावती के पुतले बना दिए है ना, स्टैच्यू बनवा दिए. तो वो चीजें इलेक्शन के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो वो सारी चीजें भी आप ये कहो कि एडवर्टीजमेंट्स और ये सारा कुछ कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, ये सारा कुछ इसी में ही फिट होगा कहीं ना कहीं. वी विल सी कि कैसे इवेंचुअली जनवरी में जब हम इसको फाइनली करंट अफेयर्स राउंड अप हमारा रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो आप देखोगे कि इसके 5-5, 10-10 पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं. सिर्फ यही बचेगा. ठीक है, तो अभी क्योंकि हमें चीजों को समझना है, यू गाइज आर क्वाइट न्यू, तो ये चीजें हमें करनी पड़ रही हैं. नाउ yes Gautam, president has to follow the advice of the prime minister in this case. Supreme Court in SS Dhanoa versus Union of India observed that more heads were better than one in a body that had to perform the important constitutional function, that of conduct of elections.
ठीक है. नाउ evolution of ECI as a multi-member body, finally this is SS Dhanova. ठीक है, डबल एस है तो ये मान सकते हो पहले सिंगल एस था तो सिंगल बॉडी थी. दिस इज हाउ आई मेमोराइज दीज केसेस एंड ऑल. डबल एस है तो दो एस हो गए, यानी कि सिंगल प्लस सिंगल डबल हो गई. मल्टी मेंबर बॉडी बनाने वाला ये केस था SS धनोआ. अब आगे धनोआ कैसे याद रखोगे? इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भाग्य धन्य हो गए. समझ में आया? तो लकी था, क्योंकि अब लकी फेज शुरू हो गया कि चलो मल्टी मेंबर बॉडी बन गया. ठीक है, तो नाउ evolution of election commission of India as a multi-member body from the commencement of constitution. ये सारा कुछ थोड़ा सा काम का नहीं होता बट लिखना पड़ता है. ठीक है, 1989 तक ECI was expanded into a multi-member commission just ahead of elections to 9th Lok Sabha against the backdrop of differences between the Congress government and election commission of India. ठीक है, ये सारा कुछ है. यूनियन गवर्नमेंट देन इनैक्टेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट. अब एक बार ना आर्टिकल 324 को आज आप अच्छे से पढ़ना. यू विल गेट टू सी, गूगल आउट करना या आर्टिकल 324 को पढ़ना. मैं बाद में एक बार भी दोबारा से भी समझाऊंगा. वहां पे लिखा है कि मैं और भी एग्जांपल्स दे देता हूं. CAG का कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट है 1971. और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं, फिनेंस कमीशन एक्ट. तो दीज एक्ट्स हैव बीन एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स they had left enormous leeway or vacuum for the parliament to fill the details. अब पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन के लिए भी ऐसा ही आर्टिकल एक दे रखा है, आर्टिकल 324 में, that parliament of India can enact a law to create suitable conditions for regulation of political parties that Parliament of India can enact a legislation to regulate the conditions of service of election commissioners. ठीक है, आर्टिकल 324 के तहत पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल को पास किया, which gave. अब ये एक्ट कब बनाया गया? जब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई, जब तक TN सेशन जैसा कोई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आया, तब तक कोई जरूरत नहीं पड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को इसको रेगुलेट करने की. लेकिन जब कोई ओवर पावरिंग कोई बंदा आ गया जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, देन दे थॉट कि हाँ, अब इलेक्शन कमिश्नर को कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाए, which gave the CEC a status equal to that of a Supreme Court judge, whereas ECs were given the status of High Court judge. ठीक है, तो TN सेशन से नाखुश उस टाइम की सरकार ने कमीशंस इंडिपेंडेंस. अब अगर मल्टी मेंबर हो जाएंगे तो इंडिविजुअल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर कम हो जाती है. ये पावर कम करने के लिए ये किया गया PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा. दे एक्सपैंडेड द ECI अगेन इन 1993. ठीक है, दोबारा से ये सारा कुछ करा गया 1991 के बाद. अब आगे देखते हैं. गवर्नमेंट मेड द CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स equal by giving all three the status of Supreme Court judge, retiring at the age of 65 years. In other words, all three commissioners now had equal decision making powers because चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहां पे स्टेटस कम होने की वजह से ये मान लिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कहेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स को वो करना पड़ेगा. लेकिन फिर तो गवर्नमेंट का जो पर्पस था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दबाने का, प्रेशराइज करने का या उनकी पावर को चेक करने का, बाय अपॉइंटिंग टू हैंड्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो पर्पस डिफीट हो गया, वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा. इसलिए इनको PV नरसिम्हा सरकार ने यह किया कि दोनों को इक्वल स्टेटस दे दिया. एक नया चैप्टर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कंटेनिंग सेक्शंस 9, 10 and 11 was introduced in the act. These three sections they say that chief election commissioner and the election commissioners would act in such a manner that there was unanimity. Point to be noted for prelims as well as mains. Prelims के लिए ECI takes decisions unanimously. Unanimous decision making. Clear? Unanimous decision making. तो prelims में अगर ये questions आए तो ECI has to take in their decision making, and in case there was any difference of opinion, majority view would prevail. 2:1 would prevail. That means another takeaway is power of CEC. The power of vote of CEC is equal to the power of vote of any EC.
ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है कि सीईसी की पावर ज्यादा है, नथिंग लाइक दैट. पावर ऑफ वोट ऑफ सीईसी इज इक्वल टू पावर ऑफ वोट ऑफ any other election commissioner. So if two election commissioners side are on one side and chief election commissioner is on another side, then two election commissioners power would be counted. Clear? लिख लो गाइज, इसको ऐसे लिख लो, तुम्हें हेल्पफुल रहेगा नोट्स बनाने में. देखो सीईसी की पावर छोटी पड़ जाती है, ठीक है. दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स वेयर एवर पॉसिबल. ठीक है ना, एग्जाम में पढ़ोगे तो फटाफट काम हो जाएगा. ECI हैज फंक्शनड एज 3-member बॉडी एवर सिंस. अब ECI 3-member बॉडी है. अब देखो गवर्नमेंट वाज वेरी क्लेवर. मेरी ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, इट शुड बी अ 10-member बॉडी ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी. राइट, यूपीएससी मेंबर्स की भी कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट है, वो सारा कुछ है. जैसे कि आर्टिकल के नीचे, किसी भी आर्टिकल के नीचे एक एक्ट बनाया जाता है टू इंप्लीमेंट दी article. Articles are very briefly they are narrating the scope of powers. Actual जो उसका impact होता है वो एक्ट में दिखता है. बट एक्ट में इन्होंने जानबूझ के एक स्मार्टनेस दिखाई. क्या किया? लगाए उतने ही जितने कंट्रोल हो जाएं. मतलब अगर ये 10 इलेक्शन कमिश्नर्स लगा देते तो वो 10 तो फिर इनकी बस ही करवा देते हैं ना, सुनते ही नहीं इनको. कोई किसी दिशा में जाता, कोई किसी दिशा में जाता. इसीलिए 2 ही लगाए और तीनों को मैनेज किया जा सकता है. ठीक है, यस, रिमूवल की पावर ज्यादा है. वो हम आगे देखेंगे. अगर सीईसी ये कहें कि ईसी को किसी को रिमूव करना है तो फिर प्रेसिडेंट को लेटर लिखने का हक सिर्फ सीईसी को है कि अगर एक इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट सही नहीं है तो उसके बारे में लेटर कौन लिखेगा? ओनली सीईसी हैज द अथॉरिटी टू रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू remove an incumbent election commissioner because of his bad conduct, because of his partisanship or lack of neutrality. Clear? So these things are there. Now what happens if any of the election commissioners dissent? If some difference of opinion persists even after oral deliberations. अब पहले आपस में discussions होंगी, deliberations होंगी. अब अगर कोई difference persist करता है then such dissent is recorded in a file. तो अशोक लवासा ने डिसेंट दिया था कि इलेक्शंस की डेट को लेके या बीजेपी के कुछ नेताओं का जो कंडक्ट था लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले 2019 में, अगर आप लोग थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर वगैरह देख रहे थे तो उस टाइम के कंडक्ट में इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने यह कहा कि सीईसी गलत कर रहे हैं. ठीक है, ऑल ओपिनियंस कैरी इक्वल वेट which means the CEC can be overruled by 2 ECs as I have explained. Normal practice अगर हम देखें, while communicating the decisions of the commission in executive matters or in case of judicative matters, judicative nature के जो judicial nature के matters हैं, under articles 103 and 192, majority view is conveyed to the parties concerned. Dissent remains recorded in the file. ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या हुई? अशोक लवासा ने डिसेंट दिया. उन्होंने कहा कि इसे रिवील किया जाए. ध्यान से सुनो गाइस, फोकस हियर. नवनीत, डिसीजन इज नॉट ऑन प्रेसिडेंट. नो, डिसीजन इज नॉट ऑन प्रेसिडेंट माय डियर. प्लीज बी क्लियर अबाउट इट. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. अशोक लवासा ने यह कहा कि मेरे डिसेंट को रिवील किया जाए. तो इसमें पावर्स में यह लिखा है कि डिसेंट जो है वो रिवील नहीं किया जाएगा. ठीक है, क्लियर? तो इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि डिसेंट रिलीज करने की जरूरत नहीं है. तो यहां पे वाइल कम्युनिकेटिंग द डिसीजंस ऑफ द कमीशन ये बताया जाता है कि 2 ने जो डिसीजन लिया है, एक डिसेंट नोट भी है, 2:1 का वोट है. तो 2 वाला जो डिसीजन है पब्लिक में, प्रेस में सिर्फ वही शेयर किया जाता है.
ये जो डिसेंट नोट है ये दब के रह जाता है। डिसेंट नोट का फायदा क्या है, समझ आ रही है बात? Ashok Lavasa highlighted some major concerns. He said that Election Commission of India as a body is not acting in a neutral manner because of the laxity it adopted, because of the laxity shown by the Election Commission of India as a body towards some leaders of the BJP, towards the conduct of some leaders of BJP, hate speech, etc. was seen enormously before 2019 elections. तो अशोक लवासा ने वो कंसर्न को हाईलाइट किया, अब वो कंसर्न दब के रह गया। लिखा है ना यहां पे, देखो आर्टिकल 103 क्या है, जब किसी, हमने पॉलिटी की क्लास में समझा है गाइस, जब किसी, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ भी रखा है उनको भी पता होगा, जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आता है तो इलेक्शन कमीशन को वो मैटर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई करने के लिए, राइट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए जब कोई डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन इज रेफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द गवर्नर। अब गवर्नर ने वो मैटर रेफर कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन में अगर डिसेंट होता है, एक इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं कि नहीं ये मैटर जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, किसी भी एमएलए को या एमपी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं। दूसरे मेंबर ये बोलते हैं कि नहीं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, दोनों मेंबर्स ने ये बोला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो द डिसीजन विल बी शेयर्ड विद द प्रेस बट द डिसेंट विल बी सप्रेस्ड, डिसेंट विल बी केप्ट हिडन टू restore or to to keep intact the prestige of election commission. इलेक्शन कमीशन की छवि को बनाए रखने के लिए जो डिसेंट करने वाले इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी बात जो है दबा के रख ली जाएगी। हाँ, उन्होंने मतभेद जताया, वो मतभेद फाइल नोटिंग्स में लिख दिया और उसे दबा दिया, फिर उसको डिसेंट नोट का मौका देने का फायदा क्या है, समझ में आया? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। देखो पॉलिटी की क्लास से है ये, थोड़ा सा पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हम बिल्डिंग, हम क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट। जो एमपी या एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई करता है उसका क्वेश्चन आर्टिकल 192 के तहत, आर्टिकल 192 के तहत किसको रेफर किया जाता है? गवर्नर को। गवर्नर को यह डिसाइड करना है कि वेदर दिस एमएलए वाज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। अब गवर्नर व्हाइल डिसाइडिंग ऑन दिस थिंग has to refer the matter to election commission, has to consult election commission of India, and the advice tendered by election commission of India is binding on governor. Governor is, this is how we write governor. तो गवर्नर को वो मैटर रेफर, वो बाइंडिंग हो जाता है। अब यहां पे ये लिखा है कि जब कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 मेंबर्स में, सीईसी में प्लस इलेक्शन कमिश्नर 1 प्लस इलेक्शन कमिश्नर 2, अगर इन तीनों में मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये दोनों एक साइड पे हैं, दे बोथ आर सेइंग यस, ठीक है, इन्होंने फेवर किया कि हां इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाइड था, इन्होंने कहा कि नहीं इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने जो रीजंस दिए हैं, डिसेंट किया है, वोट फेवर में नहीं किया है, रीजंस विल बी रिकॉर्डेड इन फाइल, दे मे और मे नॉट बी शेयर्ड विद द मीडिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसेंट देन? फिर तो जब करना यही है, दबा के बात रखनी है, तो फिर तो इसको पैसे वैसे क्यों दे रहे हैं हम जनता इसको पैसे क्यों दे भाई? फ्री के थोड़ी आते हैं ना, तुम लोग देखो कैसे फीस जब देते हो तो कितना नाप तोल करते हो, फ्री के तो आते नहीं। लेकिन यहां पे देखोगे कि ये कोई रीजन जो दिया गया है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ डिसेंट नोट व्हेन दैट डिसेंट नोट विल रिमेन सप्रेस्ड इन द फाइल एंड विल बी थ्रोन इनटू द कोल्ड स्टोरेज। अशोक लवासा, ये यहां पे एक और चीज है, यहां पे सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले जो मैटर्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है।
सेपरेट ओपिनियंस वर, अब जब रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर से या जो इस मैटर पे एनालिस्ट्स हैं उनसे जब ये पूछा गया कि भाई क्या करना है, सेपरेट ओपिनियंस वर रिकॉर्डेड इन बाय टू इलेक्शन कमिश्नर्स। ये केस हुआ था एस वाई कुरैशी एंड बी नवीन चावला। ही वॉज प्रो कांग्रेस, ठीक है, मदर टेरेसा का बहुत बड़े फैन है ये बी नवीन चावला। इन्होंने भी उस टाइम पे जैसे मैं आज बीजेपी के बारे में गलत बोलता हूं या क्योंकि ओवर पावरिंग हो रही है, वैसे ही नवीन चावला कांग्रेस के चावल खा के आए थे मान लो, ठीक है। एंड सीईसी ये बहुत ऑनेस्ट थे, एन गोपाला स्वामी ने ये तक कह दिया कि बी नवीन चावला को रिमूव किया जाए। वो एक अलग मैटर है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन 2009 इन द मैटर ऑफ एलिजेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सोनिया गांधी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मैटर की हम बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब डिसीजन लेता है, 3 मेंबर बॉडी जब ये डिसीजन लेती है तो ये यूनानिमसली डिसीजन लेती है, यानी कि कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, कि चलो ठीक है कि भाई 3 ने दो ने ये कहा है तो जो 2 ने कहा है 3 में से उनकी बात सही। वो तो हो गए डेट ऑफ नोटिफिकेशन की, इलेक्शन कौन सी डेट को होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा या कब नहीं लगेगा, है ना, उन मैटर्स पे भी कुछ इसी तरह से काम चलता है। हाउएवर डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ provision to take decision by majority since 1993 very rarely has dissent been recorded। अशोक लवासा ने 2019 में डिसेंट किया कि कुछ मेंबर्स के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन वो एफआईआर नहीं करवाई जा रही क्योंकि दो इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 मिलके उनको बाइज्जत बरी कर दे रहे हैं। आप समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो ये चीज है यहां पे आर्टिकल 3 जो फाइल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फाइल नोटिंग्स होती हैं कि डिसेंट नोट में क्या लिखा है उसको रिवील किया जाना चाहिए, बट उसको चलो ऐसा करते हैं। हमने थोड़े दिन पहले बात करी डीएनए में या कहीं और कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब डिसीजन ले लेती है उसके 15 डेज के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है या जो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग है, एजेंडा में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, रेट कट हुआ या नहीं हुआ, 15 दिन के बाद डिलेड रेवलेशन करा जाता है। उनको रिवील तो किया ही जाता है ना। पीपल हैव गॉट अ राइट टू नो एज टू व्हाई द रेट कट वाज डन और रेट कट वाज नॉट डन। दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इज नॉट लेसर इंपॉर्टेंट देन इलेक्शन कमीशन। बट यहां पे लोकतंत्र बोलते हैं ना हम, डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन की उन फाइल नोटिंग्स को डिलेड वे में ही सही लेकिन रिवील तो करो। डिलेड का भी कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मीडिया में जो डिस्कोर्स उठेगा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रियल टाइम कि इलेक्शन कमीशन ने उनको जाने दिया, कांग्रेस वालों को डाल दिया जेल में। क्यों? वो तो वोट से पहले ही होना चाहिए ना, ताकि जनता चुनाव में अपना मत डालने से पहले पीपल शुड बी एबल टू डिसाइड बिफोर वोटिंग डे, बिफोर दी डी डे, डिसाइडिंग डे कि भाई क्या करना है ना, कि इलेक्शन कमीशन सही है या गलत। अब यहां पे भी एक और इसको दबा दिया गया। अशोक लवासा ने फिर मीडिया में आवाज उठाई कि मेरी फाइल नोटिंग्स को रिवील किया जाए, लेकिन रिवील नहीं करी गई। राइट? क्लियर है ये? नाउ आगे चलते हैं। आर्टिकल 324 वेस्ट्स इन एन इलेक्शन कमीशन दी सुपरिंटेंडेंस में क्या क्या आ सकता है? डायरेक्शन एंड कंट्रोल। In nutshell, Article 324 gives a broad mandate to Election Commission of India to ensure free and fair elections. Superintendents का मतलब ये नहीं है कि वो जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरिंटेंडेंट आता था जो चला गया है ना, उसका काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि एग्जामिनेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, बाकी काम प्रिंसिपल देखेगा या प्राइम मिनिस्टर देखेगा या प्रेसिडेंट देखेंगे, नहीं, उनका काम है सारा कुछ चेक करना। इलेक्शन कमीशन what I mean to say is it can go to any extent in order to ensure free and fair elections. Parliament enacted the Representation of Peoples Act 1950 and Representation of Peoples Act 1951. So the GS mains paper 2 syllabus, GSM 2 में ये टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो वी विल बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एज वेल। तो सम ऑफ द पावर्स wielded by इलेक्शन कमीशन आर एज फॉलोज। द कमीशन कैन सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन पोल्स।
ओपिनियन पोल्स होते क्या है? ओपिनियन पोल्स वर क्वाइट इन फैशन इन 2000, 2004, 2005 तक, ये काफी 1990s में काफी ज्यादा था। आज तक का ओपिनियन पोल ये बताता है कि कल तक बीजेपी कांग्रेस नहीं रहेगी। दीज ओपिनियन पोल्स वर देन फज्ड। आज तक ने बेच दिया अपने आप को, पोल बेच दिया। एनडीटीवी का पोल उन्होंने भी बेच दिया, ठीक है। मैं दोनों की न्यूट्रलिटी ले रहा हूं, एनडीटीवी को गलत सही कुछ ये मत समझना। आज तक एनडीटीवी तो जनता की ओपिनियन, ठीक है, जनता की ओपिनियन को स्क्यू करने के लिए, एक पार्टी की फेवर में करने के लिए हमारे नतीजे ये बताते हैं। चुनाव हुआ नहीं, ट्रायल बाय मीडिया तो चलता ही है, हम देखते हैं जुडिशरी में, यहां पे वोटिंग बाय मीडिया पहले हो जाती थी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कुछ सेक्शंस को अमेंड किया और ओपिनियन पोल्स पे, ओपिनियन पोल्स रेवलेशंस बिफोर इलेक्शंस हैव बीन बैंड, ठीक है। कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर ओपिनियन पोल्स पहले नहीं ला सकता, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि जीएस में से, जीएस सेक्शन में हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग सारे हिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे। हमने ये बोला कि करंट अफेयर्स के 75 क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग सारे करंट अफेयर्स राउंड अप में आ जाओगे, है ना। ऐसे ही सारे सभी वोटर्स जो हैं उनको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, ये एक तरीका काफी, सॉरी गाइस, तो ये एक तरीका था टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स माइंड बाय परचेजिंग। बीजेपी एक चैनल का ओपिनियन पोल खरीद लेती थी और ये सब। दिस इज नॉट ओनली फॉर द ओपिनियन पोल, राइट। प्रतीक, commission can advise for disqualification of members after the elections if it thinks they have violated certain guidelines. Even after the elections, commission can disqualify the members. In case a candidate is found guilty of corrupt practices during the elections, the Supreme Court and High Courts consult the commission. Candidate is found guilty of corrupt practices. These are not only monetary corrupt practices, this could be in-kind corruption or social kind of violations of religion norms, religious के किसी के religion को साइड करना, everything. The definition of corrupt practices is quite broad. किसी के रिलीजन को साइड करके हम मंदिर वहां बनवाएंगे या मस्जिद वहां बनवाएंगे या गुरुद्वारा वहां बनवाएंगे, ये सब कहना भी करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होता है, राइट। आकाश, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली, दिस कंट्रोवर्सी विल कम once or twice in our lectures. I'll explain definitely. Today's agenda of class is electoral reforms. Office of profit is something which comes in the domain of legislative reforms. तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो the commission can suspend candidates who fail to submit their election expenses account within, timely का मतलब है within 30 days of conclusion of election, 30 days of conclusion of elections. क्लियर है? इलेक्शन कमीशन could separately file a complaint with the police under IPC. अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इलेक्शन कमीशन कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर IPC, ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन, जस्ट अ मिनट गाइस, बट जस्ट अ मिनट, बट प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो FIRs फाइल करवाई जाती हैं, पुलिस ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी स्टेट वर्क्स अंडर द इलेक्शन कमीशन insofar as smooth conduct of election commissions is concerned. इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि फाइल एन FIR अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल पार्टी लीडर, पॉलिटिकल पार्टी लीडर के खिलाफ FIR हो गई, लेकिन जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आ जाती है या कुछ होता है, whether to pursue that FIR or not, तो वो किसकी सुनती है? चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल तब तक है जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तब तक तो पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इशारों पे काम करेगी। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ,
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फिर पुलिस उन एफआईआर्स को परस्यू नहीं करती। ठीक है, कुछ कुछ फायर ब्रिगेड नेता होते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज उनको टर्म यूज करती हैं फायर ब्रिगेड नेता। फायर ब्रिगेड नेता मतलब जैसे कुछ समाजवादी पार्टी के लीडर्स थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रमोशन पाने के लिए क्या किया, मायावती की मूर्तियों को तलवार से जो है तोड़ते हुए वो दिल्ली आ गए, कहीं आ गए, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ठीक है, तो जब मायावती की सरकार आ जाएगी तो मायावती की सरकार ये कहेगी कि इस पर्सन को अरेस्ट करो, तब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी और ये सब आईपीसी के सेक्शंस के द्वारा एफआईआर फाइल हो जाएगी उस लीडर के खिलाफ। लेकिन जब मायावती की सरकार आ जाएगी तो फिर और अग्रेसिवली उनके खिलाफ काम होगा। बट अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो वो जो एफआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइल करवाई थी वो कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। ठीक है, पॉइंट टू बी रिटन इन एग्जाम इज ECI could separately, even though Election Commission of India could separately file a complaint with police under IPC provisions, the problem with this is जो हम point और counter point लिखते हैं उसमें लिखोगे point तो ये है, however these FIRs are not aggressively pursued, they are not taken to their, these FIRs are not taken to their logical conclusion। ठीक है, इन एफआईआर को अपने मुकाम तक नहीं पहुंचाया जाता, लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाया जाता। आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज लिफ्टेड। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। In 19, the court can refer the charges of corrupt practices to the president, who can seek the views of election commission. Election commission can give advice barring the individual from casting his or her vote for 6 years. 6 साल का बैन लगा देते हैं उस पे। अगर राइट टू वोट है तो ही राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस है। अगर किसी का राइट टू वोट छीन लिया जाए तो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस भी चला जाता है फिर। ठीक है, अभी मैं ये बताता हूं एक दूसरे वे में। अगर राइट टू वोट किसी क्रिमिनल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड इज अ क्रिमिनल, हिज राइट टू वोट इज सस्पेंडेड टिल द टाइम ही रिमेन्स अ क्रिमिनल। So till the time he is a criminal, his right to vote is suspended. Once his right to vote is suspended, his right to contest the elections is also suspended, because it is written in the Representation of People's Act that in order to be eligible for contesting elections, a person should have a right to vote. समझ में आया? ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि कैसे। इसीलिए आज जो हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मैटर देखते हैं उसमें यह है कि किस बेसिस पे क्रिमिनल्स को हम बैन कर सकते हैं। जो जब तक क्रिमिनल है तब तक तो वो बैंड है, लेकिन अगर कोई हीनस क्राइम करने वाला छूट के आ गया जेल से, क्या उस पे बैन होना चाहिए या नहीं? आज पब्लिक डिस्कोर्स में ये डिबेट चल रही है ना। लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं जो इन जेल हैं, दे डू नॉट हैव राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आगे चलते हैं। तो ये हो गया 1999 में बाल ठाकरे was banned by election commission from casting his vote and contesting elections for 6 years with effect from 1995। ठीक है, क्योंकि it is a very time taking process। तो 1999 4 साल लग गए उनको ये डिसाइड करने में। तो यानी कि 2001 तक बाल ठाकरे कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाए। नेचर ऑफ द पावर डिफाइंड बाय जुडिशरी, मोहिंदर सिंह गिल। ठीक है, and another versus election commissioner 1977। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा आर्टिकल 324 gives wide power, ठीक है, in the commission which may be powers or duties essentially administrative not adjudicative। ठीक है, adjudicative powers भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को एक मौका देना कि आपके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने पेनल्टी लगाई है, जो पनिशमेंट दी है, उसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। लेकिन प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं एंड मार्जिनली इवन जुडिकेटिव और लेजिस्लेटिव। तो मोहिंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कर दिया कि लेजिस्लेटिव पावर्स, इलेक्शन कमीशन कैन नॉट
widen the scope of its powers by broadly interpreting Article 324. Damage was done by the Supreme Court. क्या कहा जा रहा है यहां पे, पता है क्या कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फाइनल इंटरप्रेटर, फाइनल डिसाइडर नहीं होगा कि कौन पॉलिटिशियन करप्ट है या कौन नहीं. इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाई गई पेनाल्टी या पनिशमेंट को जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की पावर्स लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जुडिकेटिव पावर्स नहीं है. ठीक है, चलो ये तो ठीक था, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू, किसी को भी पनिशमेंट मिली है, किसी को बोला कि तुम 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो वो जुडिशरी में जाएगा, उसका हक बनता है. लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, यहां पे लिखा है एंड मार्जिनली इवन जुडिकेटिव और लेजिस्लेटिव. इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 324 ने तो छोटा सा लिख दिया यहां पे सुपरिंटेंडेंस और ये सब. अब इसमें हवा कौन भरेगा, ये तो खाली गुब्बारे हैं, दीज आर हॉलो, खाली एम्प्टी बलून्स. अब इसमें हवा कौन भरेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा कौन, TN सेशन जैसा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बड़ा सवाल ये आया इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने मोहिंदर सिंह केस में कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी पावर को री इंटरप्रेट करते हुए आर्टिकल 324 को एम्पलीफाई कर सकता है, उसका स्कोप बड़ा कर सकता है. तो इलेक्शन कमीशन ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का मोहताज बना दिया, हैंडीकैप्ड बना दिया इलेक्शन कमीशन को. अब इलेक्शन कमीशन अपनी हर पावर लॉ मिनिस्ट्री से मांगता है कि ये रिफॉर्म कर दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ला दो, इसको अमेंड कर दो ताकि हम ये काम कर सकें या वो काम कर सकें. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन गाइज? Just 1 minute. All right, so this was all. अब आगे चलते हैं. Now, it was observed in this case by the Supreme Court that framers of the Constitution took enough care to leave the scope of residuary powers to the Commission, foreseeing the infinite variety of the scope of residuary power to the Commission, foreseeing the infinite variety of situations that may emerge from time to time in such a large democracy as ours. तो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुक इनफ केयर टू लीव द स्कोप ऑफ रेजिडुअरी पावर्स. कमीशन अपने आप को रेजिडुअरी पावर्स तो दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा वेयर द एग्जिस्टिंग लॉज आर एब्सेंट एंड येट अ सिचुएशन हैज टू बी टैकल्ड, CEC मस्ट लॉफुली एक्सरसाइज हिज पावर independently in all matters relating to conduct of elections and see that इलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड प्रॉपरली. तो दोनों टेनर्स हैं इस जजमेंट के. लेकिन ये कहना एंड ड्यूटीज आर एसेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है कि आप IAS बन जाओगे. लॉ जो कहता है आप सिर्फ उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो. लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. ठीक है, अब ये तो कह दिया कि एग्जिस्टिंग लॉज आर एब्सेंट एंड येट अ सिचुएशन हैज टू बी टैकल्ड, CEC मस्ट लॉफुली एक्सरसाइज, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानून की हदों में रहते हुए अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं. ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है. ये देखने में ये लग रहा है prima facie it seems that on the face of it seems that this judgment of Supreme Court is empowering election commission, है ना. ये किस बैकड्रॉप में आ रहा है? मोहिंदर सिंह केस, ध्यान देना होगा, इमरजेंसी के ठीक बाद, ADM जबलपुर जैसे केसेस के राइट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि उन लॉज को एक्सरसाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बार बार every time it need not knock at the doors of union law ministry. ठीक है, एक बार लॉ पास हुआ. देखो आज क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
प्रपोजल भेजता है, किसको प्रपोजल भेजता है ये बना लेना, पहले समझ लो प्लीज। प्रपोजल फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री को। अब लॉ मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा, लॉ मिनिस्ट्री विल डिसाइड yes or no. Ultimate call for reforms is taken by law ministry. Then this is framed into a bill. अगर बिल हो गया, अगर yes कर दिया तो बिल हो गया, हम ये मान रहे हैं कि yes कर दिया, ठीक है, बिल आ गया। बिल गया किस में? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, मान लेते हैं पार्लियामेंट ने बिल पास किया, ECI gets the powers। अब ये कहना है इस MS गिल जजमेंट में कि ECI where the existing laws are absent and yet a situation has to be tackled, CEC must lawfully exercise its power. CEC need not beg, need not go to law ministry to invoke this, to invoke the power given by the act। बिल जब एक्ट बन जाएगा तो जो पावर मिल गई तो सीईसी उसके दायरे में रहते हुए विदाउट टेकिंग, नो नीड टू टेक द परमिशन, बिकॉज लॉ इटसेल्फ इज गिविंग द परमिशन कि केस फाइल करना है या नहीं। पैरेलल एक ड्रॉ करता हूं तुम्हें, एक इसके साथ एक और एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीबीआई का एग्जाम्पल लेंगे। सीबीआई को अगर किसी के खिलाफ केस रजिस्टर करना होता है या कुछ करना होता है तो सीबीआई नीड्स टू टेक द परमिशन ऑफ लॉ मिनिस्ट्री कि एफआईआर फाइल करनी है या नहीं करनी, ठीक है। बिल विल बन गया, पावर है ऑलरेडी, एक्ट इज देयर, आईपीसी, सीआरपीसी, एंटी करप्शन एक्ट, ठीक है, सीबीआई को पावर्स हैं, तो एक्ट बना हुआ है, बिल विल बन गया, पार्लियामेंट ने पावर दे दी, मान लो यहां पे पार्लियामेंट भी लिख देता हूं ताकि इजी हो जाए तुम्हारे लिए। सीबीसी हैज गॉट द पावर बट CBI has got the power, but CBI has to every time go to the law ministry, which is what made Election Commission say that is CBI a caged parrot? क्या CBI एक पिंजरे में रखा तोता है? जब लॉ बना दिया, उस लॉ को एडमिनिस्टर करने के लिए, ए राजा को प्रोसिक्यूट करने के लिए 2013 में एफआईआर सीबीआई ने फाइल करनी थी, चार्जशीट फाइल करनी थी कोर्ट में कि इनके ऊपर 420 का आरोप है आईपीसी के तहत, सीआरपीसी, आईपीसी, ठीक है। तो सीबीआई से पूछा कि तुमने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सीबीआई ने बोला कि लॉ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या आप सरकार का तोता हो कि आप लॉ मिनिस्ट्री से क्यों पूछोगे, बिकॉज पावर ऑलरेडी हैज बीन गिवन टू यू बाय पार्लियामेंट। ऐसे केस में इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी है, बस यही स्पष्टीकरण दिया था, यही स्पष्टीकरण दिया है सुप्रीम कोर्ट ने MS गिल जजमेंट में। समझ में आया? नाउ Election Commission of India passed an unprecedented order in May 2019, ending the campaign in West Bengal a day earlier than the stipulated time. It also removed the state's Home Secretary, who was close to Didi, Mamata Banerjee, right? And a senior police officer. अब ये दोनों एनालॉजी समझ में आ गई क्या है इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये डिफरेंस है। ऑल राइट, ठीक है सबको? So this part is there. Now model code of conduct, इस पे आते हैं। Model code of conduct is a consensus oriented document. This is just a code. Let me tell you, this is not codified. मतलब there is no act, there is no law to enforce the provisions of model code of conduct. Model code of conduct is just what? It's a consensus oriented document. In other words, political parties have themselves agreed to keep their conduct during
during elections in check and to work within the framework of the code. यानी कि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, इसके लिए कोई लीगली बाइंडिंग कोई ऐसा क्लॉज लॉज नहीं है. इट्स जस्ट दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने कॉन्सेंसस ओरिएंटेड वे में आम सहमति से ये बनाया है. मतलब कि ये कह लो यार कि दोनों के मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिता ने कोई वसीयत लिखी नहीं, कोई लॉ में नहीं लिखा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी ऐसे बटेगी वैसे बटेगी. ठीक है, दोनों भाइयों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हाँ हम लड़ेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, हम प्रॉपर्टी को म्यूचुअली कुछ इस तरह से बंटवारा कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर कोई कानून में जाए कोई भाई कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली या इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ केस कर दिया, मेरे खिलाफ नहीं किया, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि केस होना चाहिए, स्टैट्यूटोरियली बाइंडिंग नहीं है. अब क्लियर है सबको? ठीक है, फिलॉसफी बिहाइंड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज दैट सारे कुछ ऐसा बिलो द बेल्ट काम करेंगे, मक रेकिंग करेंगे, वॉयलेशन करेंगे तो कुछ रह नहीं जाएगा. इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड पार्टी कैंडिडेट्स शुड शो रिस्पेक्ट फॉर देयर ओपोनेंट्स, क्रिटिसाइज देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कंस्ट्रक्टिवली. ठीक है, ऐसा नहीं कि मक रेकिंग, धूल उड़ानी है बस एक के खिलाफ, जैसा कि बिलो दी बेल्ट होता है ना, कि मतलब हिंदी में या आप अपनी भाषा में बोलोगे कि उसको छीछा लेदर कर रहे हैं, फालतू में बोलते हैं ना, वो काम नहीं हो. एक थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ प्योरिटी से या सेम्बलेंस ऑफ डिसेंसी से इलेक्शन कुड बी कंडक्टेड. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट? MCC is intended to help the poll campaign maintain good standards. I would not say high standards. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें इसके दायरे में रहते हुए काफी काम कर सकता है. ठीक है, अब बच्चों को, एस्पिरेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि FIR मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना के चलते करी गई. गलत. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन के चलते FIR नहीं होता. FIR किसके चलते होता है? FIR कैन बी लॉज्ड अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन ओनली इफ दोज प्रोविजन. ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी से अगर पढ़ोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा. लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये चीजें. Only those provisions of model code of conduct which are overlapping with IPC CRPC, ठीक है, could be only for these matters FIR could be lodged. Directly for those matters which are given only in MCC, matters given only in MCC, no FIR could be lodged, because it is just a which document? Code of conduct, mutually agreed. It is not statutorily determined. STATUTORILY, statutorily determined नहीं है ये. ठीक है, Election Commission, Kerala was the first state to adopt a code of conduct. Election Commission decided to emulate Kerala's example and circulated the draft among all the recognized political parties. पहले जो था recognized था, and the state governments for Lok Sabha elections. These type of questions are asked in the state PCS even these days as well. लेकिन UPSC में ये questions नहीं पूछे जाते. All right? ठीक है, सबको क्लियर है ये? चलो आगे. Now, however, it was only in 1974, just before the midterm general election, EC released a formal model code of conduct. तो MCC is revised on several occasions. अगर देखो, मैं बहुत ब्यूटीफुल चीज बताता हूं. मेंस में क्वेश्चन कैसे आएगा? मेंस में क्वेश्चन ये आएगा, डू यू थिंक दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी कोडिफाइड? कोडिफाइड का मतलब कि क्या उसका एक बिल बना के, फ्रेमिंग इट इनटू अ बिल एंड गेटिंग इट अप्रूव्ड फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री, शुड वी बी पासिंग अ लॉ? अगर इस पे लॉ बना दिया तो जैसा मैंने आपको अभी बताया
कि हर बार कटोरा लेके, मैं इसी भाषा में बोलूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट हालत लॉ मिनिस्ट्री चाहे कांग्रेस की हो या कुछ ऐसा, हर बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिफॉर्म्स के लिए लॉ मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, कटोरा भी बना देते हैं। तो क्यों लॉ इलेक्शन कमीशन हैज इन द रीसेंट पास्ट been seen to be begging before law ministry to institutionalize the reform so as to cleanse the electoral space, cleanse the way in which article 324 is applied. Our sacred document 324, even though it gives the power to election commission of India to supervise, direct and control the elections so as to ensure free and fair elections, बावजूद इसके इनको law ministry के पास जाना पड़ता है। दीक्षा, अगर प्रोविजंस ऑफ सीसीसी एमसीसी आर ओवरलैपिंग ओनली देन, देखो किसी समुदाय को धर्म के नाम पे भड़काना आईपीसी में कवर्ड है, आईपीसी में क्राइम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी वो उसको गलत ठहराया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब कभी ऐसे मामले में एफआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज करवाता है, एफआईआर फाइल करवाता है, पुलिस को बोलता है, स्थानीय पुलिस स्टेशन को, द रीजनल पुलिस स्टेशन इज इंस्ट्रक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो मीडिया में ही आता है एमसीसी की उल्लंघना करने के लिए इस नेता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एफआईआर दर्ज करवाई। वो गलत होता है। एमसीसी की उल्लंघना के चलते नहीं होती, वो किसकी उल्लंघना के लिए होती है? आईपीसी की उल्लंघना के लिए होती है, क्योंकि वो पहलू है that is a part of MCC which is punishable under IPC. That is why the FIR is instituted. अब अगर ये पार्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो बाहर है, वो पार्ट उसमें पनिशेबल नहीं है, जो आईपीसी में पनिशेबल नहीं है। अगर ये आईपीसी है और ये पार्ट जो पेन वाला है ये अगर बाहर आ रहा है तो ये वाला पार्ट पनिशेबल नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, नाउ पर से provisions given in MCC are not enforceable by law. This is what I mean to say from the examination point of view. This is what you have to write. ठीक है, now अब समझ में आया? बार बार जब रिफॉर्म करना होता है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लॉ बना देंगे तो उसका भय और ज्यादा हो जाएगा। अभी पता क्या है, किसी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन होती है, मैंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन कर दी। कैसे? मैंने सारे जो पब्लिक पार्क में जो बेंचेस थे उस पर लिखा दिया सैजने से जतिन वर्मा ने ये बनवाए हैं। मैं क्या हूं? मैं एक म्यूनिसिपल काउंसिलर हूं या एमएलए हूं। मैंने एक एमएलए लैड्स, एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो मुझे 5 लाख रुपए पर साल मिलते हैं, मैंने उससे पब्लिक पार्क में बेंचेस लगवा दिए, लोगों के बैठने के लिए झूले लगवा दिए, उस पे भी मेरा नाम लिखा है। क्या वो मैंने बनवाए? नहीं, मैंने वो बनवाए एमएलए की हैसियत से। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने वो एमएलए की हैसियत से बनवाए हैं तो मेरे को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो कि नॉर्मल टाइम्स में ठीक है, 4.5 साल चुनाव से पहले के ठीक है। लेकिन जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो ये पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, तो ये एमएलए हु इज इनकम्बेंट, जो ऑलरेडी जीता हुआ है और वहां का स्थानीय एमएलए है, उसको एडवांटेज देगा, है ना। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन इन पे क्या करवा देता है? पेंट करवा देता है, ताकि ये दिखे ही नहीं, ताकि एमएलए को एडवांटेज नहीं हो, है ना। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा वॉयलेशन करता हूं, मैं जानबूझ के ये काम कर देता हूं कि दोबारा से मैंने सब पे पेंट करवा दिया कि जतिन वर्मा ने ये बनवाया, इस पार्क का उद्घाटन जतिन वर्मा ने अपने कर कमलों से किया, ये सब लिखा जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है आप ये सब नहीं करोगे। अब अगर इसको लॉ बना दिया जाएगा तो मैं क्या करता हूं, मैंने वॉयलेशन करी, फिर मैं बोलता हूं गलती हो गई, माफी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये बोलता है कि आप सॉरी बोल दो। इसका असर उल्टा होता है। क्या उल्टा असर होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के स्टैट्यूटोरली इंप्लीमेंटेबल ना होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट स्टैट्यूटोरली इंप्लीमेंटेड, व्हाट हैपेंस इज, नहीं सुन लो एक मिनट गाइस, व्हाट हैपेंस इज आई सिंपली से सॉरी, मेरे से गलती हुई। अब मेरे को चाहिए रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, टीआरपी बढ़नी चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू की तरह, अनुराग ठाकुर की तरह बढ़ेगी तो जनता मुझे और जानेगी, जनता जानेगी तो जो बार बार दिखता रहता है उसी को ही वोट डाल के आते हो, ऐसा होता है ना।
तो मेरे को ऐसे पॉपुलैरिटी मिल नहीं रही, मैं कुछ उल्टा सीधा काम करूंगा, इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेजेगा, वो मीडिया जो मेरे से 1 सेकंड के 1 करोड़ रुपए मांग रहा था वो मेरा नाम फ्री मिलेगी और मेरी ये वाली फोटो भी आ जाएगी। उससे क्या होगा, पब्लिसिटी मिल गई। फिर मैं अगले दिन सॉरी बोलूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कितना अच्छा नेता है ना, सॉरी मांग ली। कुछ को लगेगा, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है उनको लगेगा ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है पब्लिसिटी का। So the fact that model code of conduct is not statutorily implemented, some clever politicians they take it for a ride. ठीक है, मैं एक नेता हूं, मैं जानबूझ के कमल का फूल दिखाऊंगा और फिर मैं उसे फोटो में लगाऊंगा, इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेजेगा, मेरी प्रसिद्धि और बढ़ेगी, लोग मुझे और वोट देंगे। ठीक है, इसीलिए ये सवाल पूछती है यूपीएससी, पूछ सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डू यू थिंक दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डू यू थिंक दैट एमसीसी शुड बी कोडिफाइड? कोडिफाइड का मतलब होता है कि इसके सारे प्रोविजंस को एक पेपर में लिख के बिल बना के उसको पार्लियामेंट में पास करना चाहिए। तो क्या शुड इट बी कोडिफाइड और नॉट, और नॉट? ठीक है, अगर इसको कोडिफाई कर दोगे तो आपको क्या लिखना है, आंसर कैसे लिखोगे? रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, देखो गाइस प्री की तैयारी नहीं सिर्फ मेंस की तैयारी भी करनी है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कोडिफाई कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन पावर टू, अभी तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जब मन करे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिवाइज करता है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बोलता है कि आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं। बहुत इजीली पब्लिक प्रेशर के चलते पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर इसको कोडिफाई कर देंगे, द राइट एंड द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मॉडिफाई दिस, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर की इसको बार बार मॉडिफाई करने की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से छिन जाएगी, क्योंकि फिर दूसरा वाला पहलू स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा वाला, समझ रहे हो? बार बार इलेक्शन कमीशन प्रपोजल भेजेगा लॉ मिनिस्ट्री को कि इसको जो है रिफॉर्म करो। लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी? अभी इलेक्शन कमीशन ने एक केस फाइल किया हुआ है, 20 प्रपोज्ड रिफॉर्म्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है कि इन रिफॉर्म्स को किया जाए। ठीक है, तो देयर आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। कोडिफाई ना किया जाए तो क्या है, दे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट not codified, model code of conduct is not taken or is taken lightly by political parties। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम जब इसके फैक्ट्स पढ़ लेंगे तो आपको इसका एसेंस समझ में आएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन रिवाइज्ड ऑन सेवरल ओकेजन्स बाय द Election Commission. The last time this happened was in 2014 when the Commission introduced Part 8 on the manifestos. पार्टी के मैनिफेस्टोज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि पार्टी के मैनिफेस्टोज प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं है, क्योंकि आज भी पार्टीज वो दवाएं लिख रही हैं चुनाव में देने को जो अब तक आई ही नहीं। बीजेपी के बिहार के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, क्या लिखा है? कोविड की दवा फ्री सप्लाई की जाएगी। यूएसए के साइंटिस्ट थक गए, दवा नहीं बन पाई उनसे। यूके वाले भी थक गए, जर्मनी वाले भी थक गए। इवन डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि दिस वायरस इज समथिंग विच इज इवॉल्विंग एवरी सेकेंड। ठीक है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो हमारे वालों ने ये बोल दिया चुनाव में यदि बीजेपी को वोट डालोगे कोरोना वैक्सीन मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये दिक्कतें हैं। अब वो एक अलग बात है कि वैसे चुनावी मुद्दे, चुनावी जुमले नहीं करने चाहिए, पोल प्लैंक्स पॉलिटिकल पार्टीज खेलती हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ आना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। मूड क्वेश्चन इज शुड इट बी स्टैट्यूटोरली पास्ड और नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। ये वोटर को गुमराह करने का काम और भी बहुत सारी चीजें, 2 इलेक्शंस में ना कॉन्टेस्ट करने देना, एक से ज्यादा किसी सीट पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट ना करने देना, एंटी डिफेक्शन लॉ का रिफॉर्म है। तो एज आई सेड दिस इज द होल गैमुट ऑफ करंट अफेयर्स। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज द सेम फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस एज वेल एज state legislative elections. These minor factual details we will cover, and you will see that this gamut of electoral reforms is fully covered. Clear? So
आज से आपका जो है पूरा ये पर्पस शुरू हो, जो लिस्ट है हमारी करंट अफेयर्स, कौन कौन से हमें टॉपिक बेस्ड मैनर में कवर करने हैं, कौन से कवर हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और आई विल ट्राई कि एक्सेल शीट या एक गूगल ड्राइव लिंक बना के आपके साथ शेयर कर दिया जाए। आपको सिर्फ ये करना है, यू हैव टू कीप अ चेक, ये दिस मैटर वाज इन न्यूज और इन जेवीज करंट अफेयर्स मैगजीन, वेदर इट हैज बीन कवर्ड और नॉट। मैटर क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसके अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कवर हुआ है कि नहीं, ठीक है। धीरे धीरे से यू वुड सी कि अराउंड 350 टॉपिक्स, 350 to 400 topics we would be covering before prelims, clear? तो ये सारी चीजें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्रिमिनलाइजेशन, इसमें हम धीरे धीरे हैं। अभी हम यहां पे हैं, फिर दोबारा से ये फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये साइकिल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिफोर यू राइट योर प्रीलिम्स। ऑलराइट, आगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम क्या चीजें कल कवर करने जा रहे हैं। पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन कैन सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, ये भी हमने देख लिया। एंड देन the code prohibits political parties or candidates from aggravating existing differences or creating mutual hatred। मतलब this seems like 7वां अध्याय ऑफ गीता, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं इसमें कि डिफरेंसेस जो हैं पार्टीज में उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, हर डिस्प्यूट को कैंडिडली रिजॉल्व किया जाएगा, ये सारा कुछ। एमसीसी इज नॉट अ लीगली इन्फोर्सिबल डॉक्यूमेंट, ये कवर करेंगे। पावर्स ऑफ ईसी क्या है, राइट, इवैल्यूएशन हम ये भी देखेंगे। फिर लॉ कमीशन ने क्या कहा है 2015 में, ईसीआई शुड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडवर्टीजमेंट्स फॉर अप टू 6 months बिफोर द डेट ऑफ इलेक्शंस। तो शुड एमसीसी बी मेड लीगली एनफोर्सिएबल, मेकिंग ईसीआई मोर इफेक्टिव, एसेंशियल रिफॉर्म्स क्या हैं, ये सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो जो इश्यूज हमने 2-3 साल में पॉलिटी में देखे हैं, समाजवादी पार्टी का पार्टी सिंबल वाली जो डिस्प्यूट है, ठीक है, पार्टी सिंबल साइकिल का एक टायर जो है पापा ले गए और दूसरा बेटा ले गया, राइट, और गद्दी पे चाचा सवार हैं, वो भी है। फिर उसके बाद डीएमके, एआईएडीएमके के जयललिता, द ग्रेट लीडर, उनकी डेथ होने के बाद क्या हुआ तमिलनाडु में, उनकी पार्टी के इलेक्शन सिंबल फूल पत्ती, मतलब ये जो डुअल इसमें लीव्स वाला जो सिंबल था उसका क्या हुआ, कैसे इलेक्शन कमीशन इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में क्या पूछे गए, वो सब। एडजर्नमेंट ऑफ पोल और काउंटर मार्निंग ऑफ इलेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्राइबरी। Then, on the account of increasing incidents of misuse of money in elections, there should be a provision in the RPA to deal with such cases. In some cases, using its plenary powers under Article 324, resorted to cancellation of election process. Tax relief for political parties. All these things will be covered in the next class tomorrow, right? Others क्या है, opinion poll क्या होता है, exit poll. Exit poll is permitted post election. Exit polls are permitted. Section 126A bans conducting and disseminating the results of exit polls during the period starting from and commencement of polls till the completion of polls. Exit poll क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी A में वोट हुए, अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी B में वोट पेंडिंग है। एग्जिट पोल करके कोई चैनल क्या करता है, एग्जिट पोल कॉन्स्टिट्यूएंसी ए से निकलने वाले ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि पार्टी ए जीत जाएगी या पार्टी एक्स जीत जाएगी। इसका इंपैक्ट क्या होता है, 30 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण में जो दूसरे फेज में पोल्स होने हैं बी वाले, उन वोटर्स पे इसका इंपैक्ट पड़ता है कि नॉर्थ बिहार में अगर पोल्स हुए तो वहां के लोग ये कह रहे हैं। अब साउथ बिहार में इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर मोर देन 1 फेज में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एग्जिट पोल्स भी बैन है। पीएम स्पीच डिड नॉट, ये पहले का इशू था, पीएम ने एक स्पीच दी थी। वाई पीएम्स मिशन शक्तिज अनाउंसमेंट केम अंडर स्कैनर। किसी भी नए स्कीम मिशन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि चुनाव की आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब चल रहा होता है तो उस पर नहीं अनाउंस करा जाना चाहिए। कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट है इसके बारे में, हाउ एमसीसी इवॉल्व, पार्टी इन गवर्नमेंट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज, होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास एंड जो भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हो वैसे कमेंट सेक्शन में, और एल्स यू कैन सेंड अ मेल टू doubts@jvis@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डाउट सेंड कर सकते हो।
आज की जो पॉलिटी की क्लास होगी दैट विल बी डन वाया जूम 8889 जूम कॉल के जूम मीटिंग के जरिए कॉल होगी. तो पॉलिटी की क्लास में आई विल बी एंटरटेनिंग ओनली योर डाउट्स. 8:30 PM is the timing for polity class. Okay, so this was all. Model code of conduct पे ये जो question है you would be able to write after we finish off this topic in the next class tomorrow. Thank you guys. Thank you everyone.